महाप्रभु जी ने अपना मत साकार ब्रह्मवाद के रूप में स्थापित किया है, तो मेरा ऐसा सोचना था कि पूछना था कि अपने भारतीय दर्शन में या इतर भारतीय दर्शन में ऐसा कोई फिलोसोफर, ऐसे कोई तत्वचिंतक हुए जिन्होंने ऐसे कोई मत को सिमिलरिटी में प्रपोज किया हो? रामानुज ने किया है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत और हमारा शुद्धाद्वैत, और भास्कराचार्य का औपाधिक द्वैताद्वैत, इन तीनों में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब 19-20 बोल सकें ऐसा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी रामानुजाचार्य के स्टैंड को अपने से नियरेस्ट मानते हैं। स्वगत भेद उन्होंने माना है ब्रह्म में और जगत में। बाकी ब्रह्म की साकारता और कृष्ण की निराकार, मतलब नारायण की निराकारता और साकारता, दोनों फैसेट उन्होंने सेम माने हैं। मध्वाचार्य ने भी माना है जगत के साथ भले ही द्वैत माना हो, परंतु साकारता को सगुण नहीं कहा है उन्होंने। उसी तरह भास्कराचार्य का औपाधिक द्वैताद्वैत है, उन्होंने भी साकारता को सगुण नहीं कहा है, जगत और ब्रह्म के बीच औपाधिक द्वैत बताया है। ज्यादा करके जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं उन सब में साकारता और निराकारता को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जगत और ब्रह्म के रिलेशन को लेकर भले ही उनके स्टैंड अलग रहे हों, परंतु साकार को सगुण कह दें ऐसा वैष्णव हमारे जितने भी आचार्य हैं उनमें ऐसा कोई भी नहीं है। परंतु महाप्रभु जी ने साकार ब्रह्मवाद के साथ साथ जगत के साथ जितना कृष्ण का तादात्म्य बताया है उतना करीबी और कोई नहीं है। रामानुज भी स्वगत भेद तो मानते ही। हाँ बराबर। અને વેસ્ટર્ન ફિલોસોફર્સ માં કોઈ નહીં એવું? नहीं, वहाँ सब निराकारवादी। शुद्धाद्वैत मतलब ब्रह्म और जगत की इंटीमेसी मानने में तो हैं, मतलब जिन्हें हम अद्वैतवादी कह सके ऐसे, पर साकारता को लेकर तो कोई भी नहीं है। वो इंसाइट उन्हें क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम की वजह से मिली ही नहीं। हाँ दादा। और कोई प्रश्न है? ठीक है, शेफाली करो। हाँ राजा, साकार થી જ લઈ લો ને રાજા કરવાનું? नहीं, साकार हमने कल किया था, अव्यय से करना है। हाँ, साकार અને અવ્યય। ઓકે, हाँ, અવ્યય બ્રહ્મ સનાતન અવિનાશી તત્વ છે, એટલે તેની ઉત્પત્તિ અને નાશ થતો જ નથી। સૃષ્ટિમાં જીવ જળ બધું બન્યા હોવા છતાં એમાં કોઈ જાતનો વિકાર આવતો નથી। બ્રહ્મની જેમ જ એના ગુણધર્મ બી અવિનાશી એટલે વિકાર રહિત જ હોય છે। અવિનાશી એટલે વીર્યવાન, સામર્થ્યશાળી બી કહેવાય છે। પછી બીજો ગુણધર્મ સર્વ સામર્થ્ય। બ્રહ્મા કર્તા કર્તુમ અકર્તુમ અને અન્યતા કર્તુમ છે। કર્તુમ સામર્થ્ય એટલે જે જીવો જપ તપ યજ્ઞ વગેરે જેટલા પણ સાધનો રહિત હોય પણ બ્રહ્મા તેને ઉત્તમ ફળનું દાન કરવા માટે સામર્થ્ય છે। આ કર્તુમ સામર્થ્ય હોવાનું પ્રમાણ છે। એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ તો વ્રજ ભક્તોને જે ફળ આપ્યું એવું ફળ કોઈ જ્ઞાની કે કોઈ યોગીને પણ નથી આપ્યું। પછી અકર્તુમ સામર્થ્ય, કોઈ વ્યક્તિ ગમે તેટલું સાધનોથી સંપન્ન હોય પણ અગર જો બ્રહ્મની ઈચ્છા ન હોય તો તેમને એ ફળ નથી જ આપતા। આ એમનું અકર્તુમ સામર્થ્ય છે। અને અન્યતા કર્તુમ સામર્થ્ય એટલે આપણે જોયું છે કોઈ પણ ભગવત ચરિત્રમાં એવું પણ જોવા મળ્યું છે કે શાસ્ત્ર નિશ્ચિત જે લોકો શાસ્ત્ર નિશ્ચિત ભાવો રાખ્યા છે ભગવાન પ્રત્યે, જેમ કે કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, તો બી ભગવાને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો જ છે। તો આ એમનું અન્યતા કર્તુમ સામર્થ્ય છે। એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ તો કુબ્જાને, પૂતનાને, કંસને, શિશુપાલને બધાનો ઉદ્ધાર ભગવાને કર્યો જ છે એમ। પછી સ્વતંત્ર
अपरिमित ज्ञान शक्ति અને અપરિમિત ક્રિયા શક્તિ હોવાના કારણે બ્રહ્મ સ્વતંત્ર છે. જ્ઞાન હોય પણ ક્રિયા શક્તિ ન હોય, કાં તો ક્રિયા શક્તિ હોય ને જ્ઞાન ન હોય તો પણ માણસ પરતંત્ર બની જાય છે. આના એક્ઝામ્પલમાં આપ્યું છે કે અગર કોઈ પંડિત છે, એમનામાં જ્ઞાન છે પણ ક્રિયા શક્તિ નથી, તેથી તો પરતંત્ર બની જાય છે. અને વાઇસ વર્સા તેવી જ રીતે મજૂર છે, એમનામાં ક્રિયા શક્તિ છે પણ જ્ઞાન શક્તિ નથી, તેથી તો પરતંત્ર બનીને જ રહે છે. બ્રહ્મમાં તો જ્ઞાન અને ક્રિયા શક્તિ બંને હોવાને કારણે તે સ્વતંત્ર છે. બ્રહ્મના આ સ્વતંત્ર જે છે તેમની શ્રી શોભા છે. સ્વાતંત્ર્યને તેમની શ્રી એટલે શોભા કહેવામાં આવે છે. પછી સર્વેશ્વર, અવાજ આવે છે ને? હેલો, હા સંભળાય છે. હા, સર્વેશ્વર એટલે બ્રહ્મને કોઈ પોતાના વશમાં કરી શકતું નથી. ઉલટાનું બ્રહ્મ જ બધાને પોતાના વશમાં રાખે છે. આથી તેમને સર્વેશ્વર કહેવામાં આવે છે. પછી સર્વજ્ઞ, એ સર્વત્ર સર્વદા અને સર્વ વસ્તુઓમાં વ્યાપ્ત હોય છે. એવી કોઈ બાબત જ નથી જે એમની જાણકારીની બહારની હોય છે, એટલે એમને સર્વજ્ઞ પણ કહેવાય છે. તો આ આપણે ગુણ, જ્ઞાનનો ગુણ છે. પછી નિર્ગુણ, અપ્રાકૃત અલૌકિક અનંત ગુણોથી સંપન્ન હોવાના કારણે છતાં પ્રાકૃત લૌકિક સર્વ ગુણોથી રહિત પણ હોય છે. આ કારણે એમને નિર્ગુણ કે નિર્ધર્મક પણ કહેવામાં આવે છે. પછી હા, હવે અગર આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો વ્યાપકતા એટલે ઐશ્વર્ય સાથે થઈ શકે, અવ્યવતા એટલે વીર્ય, સર્વશક્તિમાન એટલે યશ, અને સ્વાતંત્ર્ય એટલે શ્રી, અને સર્વજ્ઞ એટલે જ્ઞાન, અને પ્રાકૃત ગુણ વર્જિતતા એટલે વૈરાગ્ય. આમ આવી રીતે 6 ગુણોનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ સિવાય પણ ઘણા બધા ગુણધર્મ શાસ્ત્રોમાં દેખાડવામાં આવ્યા છે. સર્વાધાર એટલે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે અને તેમના જ આધાર રૂપે પોતે એટલે સૃષ્ટિનું સર્જન પણ એમને જ કર્યું છે અને તેના આધાર રૂપે બ્રહ્મ પોતે બનતું હોવાથી બ્રહ્મને સર્વાધાર પણ કહેવામાં આવે છે. પછી સર્વ વિલક્ષણ ગુણ, સમુદ્ર જે છે એ તરંગો રૂપે પ્રગટ થતો હોવાથી તરંગોમાં તે સમાપ્ત થઈ નથી જતો, કારણ કે અપરિપૂર્ણ છે. તે જ પ્રમાણે જે પણ જળ જીવ રૂપે બ્રહ્મા પ્રકટ થતો હોય છે હોવા છતાં પણ જળ જીવ આદિમાં સમાપ્ત નથી થઈ જતો. તરંગો રૂપે બનવા છતાં પણ સમુદ્રને પોતાનું એક સ્વરૂપ રહેતું હોય છે. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મા સ્વરૂપ હોવા છતાં સર્વથી સ્વતંત્ર વિલક્ષણ એટલે અલગ પણ છે. હવે આનું કારણ આપણે જોઈએ તો સમજવું જોઈએ કે પિતાના ગુણો પુત્રમાં હોય છે પણ પુત્રના ગુણો પિતામાં નથી હોતા. સમુદ્રના ગુણો તરંગોમાં આવતા હોય છે પણ તરંગોના ગુણ સમુદ્રમાં નથી આવતા. તો આના ઉપરથી એ સિદ્ધાંત સ્થાપિત થઈ શકે છે કે હંમેશા કારણના જે ગુણો છે એ કાર્યમાં આવતા હોય છે, કાર્યના ગુણો કોઈ દિવસ કારણમાં નથી થતા. આથી જ બ્રહ્મા જયારે જળ કે જીવના રૂપોને ધારણ કરે છે ત્યારે તે જળની માફક અચેતન કે જીવની માફક અણુ કે પરિસ્થિતિ બની શકે છે, બની નથી જતો. આના જ કારણે આપણે એને સર્વ વિલક્ષણનો પણ ગુણ જોવામાં આવે છે બ્રહ્મમાં. हेलो, यहाँ तक हमने पिछले सेशन में लिया था. आगे का विषय आज से स्टार्ट करना है. आई होप पिछला जितना भी सब्जेक्ट है उसमें किसी को कोई प्रश्न नहीं है. अगर कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो आगे करते हैं. राजा, हाँ जूही, धन्यवाद. प्रणाम राजा. राजा, ये निर्गुण में थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे यहाँ लिखा है ब्रह्म अप्राकृत अलौकिक अनंत गुणों की संपन्न है,
तो राजा अप्राकृत में अपन और अलौकिक में अपन कौन से मतलब गुण ले सकते हैं? ये जितने भी ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य सब गुण हैं, ये सभी अलौकिक गुण हैं जो लौकिक मनुष्य में नहीं होते हैं। प्राकृत गुणों से मतलब है सात्विक, राजस और तामस, इन 3 गुणों से बंधे हुए होना। और अप्राकृत का मतलब है कि जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से पर है, गुणातीत है, निर्गुण है। मुख्य शब्द इस तरह से बनता है। अब सात्विक, राजस, तामस गुणों से बंधन इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर आनंद गुण धर्म नहीं है। ब्रह्म आनंद गुण धर्म वाले हैं, इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं है। वो परिच्छिन्नता आती ही प्रकृति की वजह से, वो प्रकृति का बंधन ब्रह्म के ऊपर है नहीं क्योंकि वो तो निर्गुण है। इसलिए अपरिच्छिन्न होने में ही ब्रह्म के सारे गुण समा जाते हैं। इन सभी गुणों को भले एक एक करके अलग अलग से काउंट किया हो, परंतु हम चाहें तो जिनमें आनंद गुण धर्म होगा उनमें ये सभी के सभी गुण होने ही वाले हैं। कार्य को, एक एक कार्य को अलग अलग दिखाने के लिए हम इन सभी गुणों को अलग अलग काउंट कर रहे हैं। बाकी तो आनंद गुणधर्म वाले जो हैं उनके अंदर तो सर्वोपरिता होना, ऐश्वर्यवान होना, वीर्यवान होना, सर्वसमर्थ होना, ये सब कुछ टू बी अंडरस्टूड है। इन्हें अलग अलग कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पर डिस्टिंग्विशली हम इसे समझ रहे हैं। बाकी आनंद गुणधर्म वाला होना ही ब्रह्म का मुख्य स्वरूप लक्षण है, उसी में ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठता भी है। जी राजा, समझे। हेलो, प्रणाम राजा। हाँ बोलो। ये स्वगत भेद में ये तो समझ आ रहा है कि परमात्मा को ब्रह्म का स्वगत भेद के जो है वो ले रहे हैं लोग, लेकिन क्या हम परमात्मा को सजातीय भेद के तहत भी ले सकते हैं? क्योंकि परमात्मा और ब्रह्म ये दोनों में समान गुण भी तो बहुत सारे हैं। तो जैसे जीव को लिया है सजातीय भेद के तहत, ऐसे परमात्मा को भी ले सकते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों में स्वरूप भेद नहीं है, केवल कार्य भेद है या पक्ष है, डायमेंशंस हैं। इसलिए इन दोनों में तो भेद का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। ब्रह्म ही परमात्मा है, परमात्मा ही भगवान है और भगवान ही ब्रह्म है। इन तीनों में तो भेद है ही नहीं। अब जीव और जगत के साथ भेद का विचार इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं कि दिखाई देता नहीं है हमें कि ये सब कुछ ब्रह्म के साथ रिलेटेड है। या जैसे मैं जीव हूँ, अब मैं जानती हूँ कि मेरी जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, और अविद्या के कारण हमें वो फील नहीं होता है कि हम ब्रह्म के साथ किसी भी तरह रिलेटेड हैं। जैसे हमारे आसपास जो पूरा जगत है वो पूरा ब्रह्म में से ही पैदा हुआ है, ब्रह्म ही इसके उपादान कारण बने हैं, फिर भी जगत की एक भी पदार्थ को देखकर हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये ब्रह्म रूप है। इसलिए वहां किसी प्रकार का भेद है ऐसा सोचना पड़ता है, और उसी भेद को लेकर फिर सभी वादी प्रतिवादी अपना अपना मत देते हैं। पर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों स्वरूपों में कोई भी प्रकार के भेद की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो स्वरूप एक ही हैं। अब परमात्मा के साथ सजातीय भेद लेना, विजातीय भेद लेना, स्वगत भेद लेना, ऐसा सोच सकते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म के साथ अगर सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद बताएंगे, वो परमात्मा और भगवान के साथ ऐसा ही बताएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे मध्वाचार्य को जैसे हम ले लें तो मुख्यतया भेदवादी तो मध्वाचार्य ही हैं, जो पूरा पूरा द्वैत ही मानते हैं। मतलब ब्रह्म और जगत में द्वैत है, ब्रह्म और जीव में द्वैत है, जीव और जगत में द्वैत है, जगत के प्रत्येक पदार्थ में भी परस्पर द्वैत है और प्रत्येक जीव में भी परस्पर द्वैत है, ऐसा मध्वाचार्य मानते हैं। अब इतना सारा द्वैत मानते हैं तो सभी के साथ वो सजातीय, विजातीय, स्वगत तीनों ही भेद मध्वाचार्य मानते हैं। रामानुज ने सिर्फ स्वगत भेद भगवान के साथ माना है। इसलिए जो भेद ब्रह्म के साथ माना जाएगा वही भेद परमात्मा और भगवान के साथ भी माना ही जाएगा।
मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। શેફાલી, મારી અવાજ સંભળાય છે બધાને? હા રાજા, જી રાજા, એમની જ અવાજ બ્રેક થઈ રાજા, એમ જે બોલી રહ્યા છે એમને. હા તો ઠીક છે. ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે राजा। हाँ राजा, एक और क्वेश्चन ऐसा हो रहा था, ये लास्ट पैराग्राफ में, उसमें सर्व विलक्षण के नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे पिता के जो गुण होते हैं वो पुत्र में आते हैं, तो इसी तरह यहाँ समझाया है कि ब्रह्म ही सब जड़ जीव जगत बने हैं, तो उन ब्रह्म के जो गुण है वो जड़ जीव में आएंगे ना। फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आથી જ બ્રહ્મ જ્યારે જળ કે જીવના રૂપોને ધારણ કરે છે ત્યારે તે જળની માફક અચેતન કે જીવની માફક અણુ કે પરિચ્છિન્ન બની નથી જતો। पर यहाँ ऐसा वाइज वर्सा लिखा है कि ब्रह्म जब इनके रूप धारण करता है जड़ जीव के, तब वो जड़ जीव का गुण ब्रह्म नहीं लेता है, पर एक्चुअली तो जो ब्रह्म का गुण जो है वो जड़ जीव में आएगा ना। मतलब बात वही लिखी है, तो मैं सही समझ रही हूँ ना? ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि ये प्रॉब्लम मध्वाचार्य, रामानुज, शंकराचार्य जी को हो रही है अद्वैत कहने में। क्योंकि हमारा अनुभव क्या होता है कि मैंने लाल मिट्टी से मटका बनाया तो वो लाल बनता है, काली मिट्टी से मैंने मटका बनाया तो काला बनता है। लाल मिट्टी से बनाई हुई चीज काली नहीं बन जाती, उसी तरह काली मिट्टी से बनाई हुई चीज लाल नहीं बन जाती है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं ये बोल रही हूँ कि ब्रह्म में से जगत बना है, जीव बने हैं, अब हम में से किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा है, परंतु हमने हमारे आसपास जगत और जीव को देखा है। अब जगत और जीव को देखकर हम जैसे मटके को देखकर मिट्टी की कल्पना करते हैं, ऐसे जगत को देखकर ब्रह्म की कल्पना करें तो क्या समझ में आएगा कि जगत जैसा है ऐसा ही उसका कारण भी होना चाहिए, या जीव जैसा है ऐसा ही उसका कारण भी होना चाहिए। जैसे मुझे मटका लाल दिखाई दे रहा है तो मटके की मिट्टी लाल ही होगी, ऐसा हम उल्टे क्रम में देखने लग जाएं, क्योंकि वस्तुतः प्रॉब्लम यही होती है कि हमने ब्रह्म को नहीं देखा है, हमने जगत और जीव को देखा है। तो जगत और जीव के गुणों को लेकर हम ब्रह्म के स्वरूप को अज्यूम करते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा है कि पिता के पिता के गुण पुत्र में आते हैं, पुत्र के गुण पिता में नहीं आते। उस तरह मैंने जगत को देखा कि जगत अचेतन है, तो लाल मटके को देखकर मैं ये सोचूं कि इसकी मिट्टी भी लाल होती है, तो जगत अगर जड़ है तो कर्ता भी जड़ होगा, कारण भी जड़ होगा, या जीव अविद्याग्रस्त है तो कारण भी अविद्याग्रस्त होगा। ऐसा सोचो तो महाप्रभु जी यहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म के गुण जगत में आ जाते हैं, पर उन जगत के गुणों में से कुछ आविर्भाव तिरोभाव करके जगत और जीव को भगवान ऐसा बना देते हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म खुद उनके जैसे बन जाते हैं। अपने एक गुण को लेकर जगत बनाया, दूसरे गुण को लेकर जीव बनाया, पर खुद जड़ हो गए, खुद जीव हो गए, ऐसा उसका अर्थ नहीं। मतलब ब्रह्म में आनंद गुणधर्म इंटैक्ट रहता है, इसलिए जड़ और जीव के रूप में प्रकट हो जाने के बाद भी ब्रह्म के ब्रह्मत्व में कोई कमी नहीं आती है। मुख्य बात ये। जी शंकराचार्य जी को पर वैसे भी पूर्व पक्ष देखो, शंकराचार्य जी को प्रॉब्लम क्या है, हम जब ये कहते हैं कि ब्रह्म ही जगत रूप हुए हैं, तो शंकराचार्य जी को तकलीफ ही हो जाती है कि तो फिर जगत में अविद्या है तो ब्रह्म में भी अविद्या माननी पड़ेगी, जगत दोष वाला है तो ब्रह्म में भी दोष मानने पड़ेंगे, जगत परिच्छिन्न है तो ब्रह्म को भी परिच्छिन्न मानना पड़ेगा, क्योंकि घड़ा काला है तो मिट्टी भी काली होगी, लाल मिट्टी में से काला घड़ा थोड़ी बनता है। तो शंकराचार्य जी ऐसे सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने कारण के रूप में माया को सोच लिया। महाप्रभु जी ये कहते हैं कि माया को सोचने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म ही इन रूपों में बन जाते हैं, परंतु अपने गुणों में आविर्भाव तिरोभाव करने के कारण
जीव और जगत परिच्छिन्न बनते हैं, ब्रह्म के ब्रह्मत्व में कमी नहीं आती है। तो तकलीफ ये है कि ये विलक्षणता का सिद्धांत नहीं समझने के कारण उनकी उपादानता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जैसे मध्वाचार्य भी नहीं करना चाहते हैं और शंकराचार्य जी भी नहीं करना चाहते। इसलिए हम ये बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि पिता के गुण पुत्र में आते हैं, पुत्र के गुण पिता में नहीं जाते हैं। अब क्लियर हुआ? जी राजा। अरे वैसे भी अपन अगर देखें तो जैसे कुछ गुण आते हैं बच्चे में पिता के, और अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि जो गुण बच्चे में है तो बोले कुछ अच्छा गुण नहीं हो तो अपन ऐसा बोल दे कि ये जरूर पिता पे गया है। तो ऐसा अपन जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता है कि जैसे अविद्या के लिए बोले कि अविद्या ब्रह्म में भी होगी, जगत में आई है, तो वो सही बात है कि वो पॉसिबल ऐसा थोड़ी है। ऐसा समझ गई राजा। इसलिए मतलब महाप्रभु जी जैसे ये कह रहे हैं ना कि ब्रह्म खुद ही जगत रूप बन जाते हैं, ये स्टेटमेंट शंकराचार्य जी नहीं दे पा रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो मध्वाचार्य नहीं दे पा रहे हैं। उन दोनों को तकलीफ ये विलक्षणता को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण ही हो रही है, इसलिए उन्हें उपादान कारण के रूप में किसी और को लाना पड़ रहा है। हम ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे ब्रह्म में आनंद गुणधर्म इंटेक्ट रहता है, हम बोल परंतु ये कहीं नहीं जाती है। हेलो राजा, आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो जैसा उनका आवाज सुनाई दे रहा था ना पहले, वैसा आपका आवाज आ रहा है। एक मिनट। जी हाँ। नहीं राजा, नहीं सुनाई दे रहा। हेलो हेलो, અવાજ આવે છે? રાજા ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા લાગે છે. हाँ राजा डिस्कनेक्ट થઈ ગયા છે. हेलो 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 राजा की आवाज आई थी पर फिर से कट गई ना। हाँ वच्चे 1 सेकंड માટે આવી. नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हશે તો.
हेलो। हाँ राजा। हाँ, जो ही क्लियर हो गया ना? हाँ जी राजा, हो गया। ठीक है, करो आगे। जी राजा। करूँ राजा? हाँ कर। अब आवाज, हाँ। અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન સૃષ્ટિનું નિમિત્ત તથા ઉપાદાન આમ બંને કારણરૂપ બ્રહ્મા જ છે. આનું નિરૂપણ વિસ્તારપૂર્વક થઈ ચૂક્યું છે. હવે સૃષ્ટિનું નિમિત્ત અને ઉપાદાન આ બંનેના કારણરૂપ બ્રહ્મા જ છે એનું ક્લેરિફિકેશન ડિટેલમાં થઈ ચૂક્યું છે. વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય તત્વ બ્રહ્મ એક અદ્વિતીય હોવા છતાં સૃષ્ટિ સમયે તે અનેક વિરુદ્ધ રૂપોને ધારણ કરે છે. પોતે વ્યાપક હોવા છતાં જીવ રૂપે અણુ બની જાય છે. હા, એટલે તત્વ જે છે બ્રહ્મા એ એક અદ્વિતીય હોવા છતાં સૃષ્ટિના સમયે તે અનેક વિરુદ્ધ રૂપોનું ધારણ કરે છે. એટલે પોતે પણ એ જ બન્યા છે ને બીજું બધું પણ એ જ બન્યા છે. પોતે વ્યાપક હોવા છતાં જીવ રૂપે અણુ બની જાય છે. એ સર્વવ્યાપક છે તો પણ જીવ રૂપે એકદમ અણુ પણ બની જાય છે. સર્વ કારણોનું પણ કારણ હોવા છતાં જગત રૂપે કાર્ય પણ બની જાય છે. જે બધા જ કારણોનું જે કારણ છે હોવા છતાં પણ એ જગતના કાર્ય રૂપે પણ બની જાય છે. સર્વ રૂપોને ધારણ કરતું હોવા છતાં તે સર્વથી વિલક્ષણ પણ છે. આવા પરસ્પર અનેક વિરુદ્ધ ધર્મોને ધારણ કરતું હોવાથી બ્રહ્મને વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય છે. બ્રહ્મા વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય છે. રાજા આ તો સર્વ વિલક્ષણમાં આવી ગયો ને ઉપર તો પાછું અલગથી કેમ આપે છે? यहाँ ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब हम जगत के अन्य अन्य सभी वस्तुओं को देखते हैं, अब सजातीय और विजातीय भेद को न स्वीकारने के पीछे महाप्रभु जी का बैकग्राउंड फिर यही है कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है. मतलब जगत के हम पदार्थों को देखें तो हमें लगता है कि ये सब तो जड़ हैं, हम चेतन हैं. तो चेतन और अचेतन ये दोनों पदार्थ एक दूसरे से विरुद्ध हैं, ऑपोजिट कैरेक्टर वाले हैं. फिर भी वो कुर्सी के रूप में भी ब्रह्म ही बने हैं और मेरे रूप में भी ब्रह्म ही बने हैं. इसे विरुद्ध धर्माश्रय कहा जा रहा है. मतलब सृष्टि में जितने भी पदार्थ रूप हैं उन सभी में विरोधी धर्म, विरोधी कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी सभी का कारण तो एकमात्र ब्रह्म ही है. इसलिए सभी विरुद्ध धर्मों को वो अपने में आश्रय देते हैं. ये ब्रह्म का गुण है. विलक्षणता में ये बात आई थी कि इन सभी रूपों में ब्रह्म बनते हैं, फिर भी उनके गुण ब्रह्म में नहीं आ जाते हैं. मतलब ब्रह्म ने अपने आप में से जड़ पदार्थों को पैदा किया है, उसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्म परिच्छिन्न हो गए. तो उसे विलक्षणता में समझाया. अब ब्रह्म इन दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर वाले धर्मों को भी खुद ही धारण करते हैं, इसलिए यहाँ विरुद्ध धर्माश्रयता का गुण आया. हाँ, खबर पड़ी है बराबर. तर्का गोचर ब्रह्म राजा. हाँ राजा, निमित्त और उपादान अभी जो अपन ने देखा उनको भी क्या अपन ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं क्या? कि जैसे निमित्त और उपादान का दोनों ब्रह्म ही बन रहे हैं, तो उन दोनों को क्या वो विरुद्ध धर्माश्रय में ले सकते हैं कि नहीं? एग्जैक्टली विरुद्ध धर्माश्रय नहीं है, पर विलक्षण ये नई बात तो है. क्योंकि जैसे मिट्टी है वो घड़े का उपादान कारण है, तो वो मिट्टी कभी भी घड़े से अलग नहीं होती है. और निमित्त कारण जो है, जैसे कुम्हार है या कुम्हार का दंड चक्र वगैरह है, ये सब निमित्त कारण है. तो वो घड़ा पैदा हो जाने के बाद घड़े से अलग उनकी सत्ता रहती है. पर ब्रह्म एकमात्र ऐसे पदार्थ हैं जो उपादान कारण भी बनते हैं और निमित्त भी बनते हैं. बाकी जगत के कोई भी पदार्थ में उपादान कारण और निमित्त कारण एक नहीं होता है. जो निमित्त कारण होता है वो अनुस्यूत नहीं होता, और जो अनुस्यूत होता है वो अलग नहीं रहता है. पर जगत के विषय में दोनों ही ब्रह्म खुद बनते हैं. विरुद्ध धर्माश्रयता नहीं है,
पर जनरली जो कारण और कार्य का रिलेशन होता है उसमें ये नई बात है, ऐसा अन्य किसी कारण कार्य में नहीं होता है ब्रह्म के जैसा। जी राजा, मतलब इन सेंस वो विरुद्ध नहीं है, पर वो दोनों चीज ब्रह्म ही बने हैं, तो वो एक अलग चीज है सर। हाँ बिल्कुल। जी राजा। તર્કાગોચર બ્રહ્મના સ્વરૂપને તર્કની સંકુચિત બુદ્ધિ સામર્થ્યથી સમજી શકાતું નથી. બ્રહ્માની વ્યાપકતા, વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયતા વગેરે કારણે તર્કના નિયમો બ્રહ્મની સામે પાછા પડે છે. આ કારણે બ્રહ્મને યુક્ત ગોચર કે તર્કાગોચર કહેવામાં આવે છે. તર્કાગોચર એટલે જે પ્લાનેટ્સનું સ્ટડી કરે એ જ ને રાજા? नहीं, तर्क का मतलब होता है लॉजिक। तर्क से जो अगोचर है उसका अर्थ है कि लॉजिकली जिसे समझा नहीं जा सकता है, या हमारी बुद्धि से हम जिन्हें समझ नहीं सकते हैं। हाँ, એટલે બ્રહ્મના સ્વરૂપને એટલે નાની બુદ્ધિ સામર્થ્ય વાળા તર્ક પણ સમજી નથી શકતા. એવા વ્યાપકતા, વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયતા વગેરેના કારણે તર્કના નિયમ એટલે એની સામે પણ જે બ્રહ્મના નિયમો છે એ પાછા પડી જાય છે. એના હિસાબે બ્રહ્મને યુક્ત ગોચર કે તર્કાગોચર કહેવામાં આવે છે. इसका अर्थ ये है कि हम लॉजिकली हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब के द्वारा जब ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ फेल हो जाता है। जैसे हमने अभी उपादान और निमित्त कारण में देखा कि जो उपादान कारण होगा वो निमित्त नहीं हो सकता है, और जो निमित्त कारण हो सकता है वो उपादान नहीं बन सकता। उसी तरह जो जड़ है वो चेतन नहीं हो सकता है, और जो चेतन है वो कभी जड़ नहीं हो सकता है, परंतु ब्रह्म ही जड़ भी है और ब्रह्म भी चेतन भी है। तो ये सारे कैरेक्टर्स ब्रह्म के ऐसे हैं कि हम जिन्हें अपनी बुद्धि के द्वारा या अपनी लॉजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पर समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें युक्ति से अगोचर कहा जाता है। युक्ति से अगोचर का मतलब कि हमारे तर्क, हमारी बुद्धि, हमारे लॉजिक जो हैं वो ब्रह्म को समझने में कैपेबल नहीं है। जब भी हम अपनी बुद्धि से तत्व को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं, या उनकी उतनी असीमता या व्यापकता हमारी इतनी बुद्धि के समझ में नहीं आती है, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। शास्त्र हमें समझाता है तभी वो बात समझ में आती है। इसीलिए महाप्रभु जी और शंकराचार्य जी से महाप्रभु जी को जो मुख्य प्रॉब्लम है वो यही है। शास्त्रार्थ प्रकरण के उपोद्घात प्रकरण में महाप्रभु जी ये बात क्लियर करते हैं कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और गौणी। नाम लिख लेना इनके। शब्द शक्ति या शब्द में अर्थ को कन्वे करने की शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और गौणी। अभिधा का अर्थ ये है कि शब्द से बना हुआ जो सेंटेंस है उससे डायरेक्टली जो अर्थ कन्वे हो रहा है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे गंगाया तटे घोषः, ये एग्जाम्पल इसके लिए दिया जाता है कि गंगा में घर है, गंगायाम घोषः। अब लॉजिकली हम सोचें तो गंगा तो नदी है, गंगा में घर नहीं हो सकता है, तो गंगायाम घोषः इसका अर्थ क्या होगा? गंगायाः तटे घोषः, मतलब गंगा जी के किनारे पर घर है। अब जो सेंटेंस हमने सुना उसमें तट शब्द नहीं था, इसे हमने अपनी बुद्धि से जोड़ लिया, तो गंगायाम घोषः ये अभिधा है और गंगायाः तटे घोषः ये लक्षणा है। इन दोनों का डिफरेंस आया समझ में? अभिधा खबर जैसे लक्षण मतलब जो अपन अपनी बुद्धि से सोच के जो वर्ड हमने तट डाला वो ना। हाँ,
गंगायाम घोषः, ये सेंटेंस को सुनकर इसमें से डायरेक्टली जो अर्थ कन्वे हो रहा है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, तो हमने उसमें गंगायाः तटे घोषः ये बात ऐड कर दी। अब गंगायाः तटे घोषः, ये तट शब्द को हमने जोड़ा है, वो सेंटेंस में था नहीं, ये लक्षणा है। और गंगायाम घोषः ये बात अभिधा है, अभिधा शक्ति है। हाँ, खबर पड़ रहा था। तो महाप्रभु जी हमें ये बात बताते हैं कि शास्त्र ने ही हमें ब्रह्म तत्व के बारे में समझाया है, इसलिए शास्त्र में जो कुछ भी कहा गया है उसे एज इट इज स्वीकारना चाहिए। उसमें वो शास्त्र की कही गई बातें भले ही हमें लॉजिकली एक्सेप्टेबल कोई चीजों में न भी लगती हो, फिर भी शास्त्र के अर्थ के साथ कोई छेड़छाड़ कभी भी करनी नहीं चाहिए। तो महाप्रभु जी शास्त्र प्रकरण के उपोद्घात प्रकरण में आज्ञा करते हैं कि मैं जब शास्त्र का अर्थ करूंगा तो अभिधा शक्ति का ही प्रयोग करूंगा, लक्षणा का प्रयोग नहीं करूंगा। शंकराचार्य जी ने लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया है। हमने अभी शास्त्र प्रकरण का क्लास जिन्होंने अटेंड किया हो उन्हें बात समझ में आई होगी कि जहां जहां भी शास्त्र के कहे गए वचन उन्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग में एक्सेप्टेबल नहीं लगते हैं, वहां वहां वो अपनी बुद्धि से शब्दों को तोड़ मरोड़ के बदल देते हैं और फिर उससे जो अर्थ निकलता है उसे अपने मत में सेट कर देते हैं। तो महाप्रभु जी को मुख्य तकलीफ ये है कि शास्त्र ने जो कहा है वो वही कहा है। मतलब शास्त्र अगर ये कहेगा कि पत्थर तैर रहे हैं तो उसका मतलब तैर ही रहे हैं, भले ही दुनिया में हमें पत्थर तैरते हुए नहीं लगते हैं, पर शास्त्र में कहा तो उसे ऐसा ही लेना है। उसमें पत्थर तैर रहे हैं, इनमें हम अपने शब्दों को जोड़ दें तो महाप्रभु जी कहते हैं वो नहीं चलेगा। लोक में दुनिया में तुम्हें जो करना हो वो कर सकते हो, परंतु शास्त्र के वचनों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो ये बात महाप्रभु जी मुख्यतया बताते हैं, इसीलिए हम यहाँ तर्कागोचर ये लक्षण ब्रह्म का समझ रहे हैं कि ब्रह्म का स्वरूप हमें शास्त्र ही समझाता है। वो तत्व क्या है, कौन है, कहाँ से आए, किस तरह हुआ, ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें शास्त्र समझाता है। और शास्त्र की बताई गई प्रक्रिया में 1% भी चेंज महाप्रभु जी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। इसलिए वो बात हमें समझ में आए न आए, एक्सेप्टेबल लगे न लगे, परंतु प्रक्रिया तो यही है। ये ध्रुव सिद्धांत है जिसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। हमें अभी समझ में आ रहा है तो आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ सालों के बाद आ जाएगा, परंतु हमें वो बात ठीक नहीं लग रही है या दुनिया में हमें वो ऐसा दिखाई नहीं देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम शास्त्र के शब्दों को बदल दें या शास्त्र के वाक्यों में अपनी बुद्धि अनुसार कोई भी चेंजेस करें। तो तर्कागोचर का अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, ब्रह्म की व्यापकता, विलक्षणता, ब्रह्म का ऐश्वर्य हमारी इतनी छोटी बुद्धि को समझ में आए या उस बुद्धि से हम उन्हें नाप पाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब ब्रह्मा जी जैसे भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाए, इंद्र जैसा नहीं समझ पाए, नारद जी भी गलती कर गए, उद्धव जी भी गलती कर गए, तो हमारे जैसों की तो क्या ही बुद्धि की बात करें। तो इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि किसी भी तर्क से, लॉजिक से, हमारी बुद्धि से या हमारे लौकिक नापदंडों से ब्रह्म के स्वरूप को या शास्त्र में बताई गई बातों को समझा नहीं जा सकता है। इसलिए शब्द मात्र, शास्त्र मात्र एकमात्र प्रमाण है जिसके द्वारा हम इन बातों को समझ सकते हैं। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप जो है वो तर्क से अगोचर है। लॉजिकली हमारा लॉजिक ब्रह्म के स्वरूप को नहीं समझ सकता है। हमारी बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग में हम ब्रह्म के स्वरूप को कन्फाइन नहीं बना सकते हैं। ये बात यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इस बारे में अगर और कोई प्रश्न हो तो हम उन्हें कल ले लेंगे। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कल पूछ लेना, नहीं तो हम आगे करेंगे। आज का यहाँ रखते हैं।